Good morning, dear student. This is class 12th and I am Anjali Singh. Today, we are going to take the last topic of alternating current. After that, your alternating current topic is finished. Okay, so our today's topic is very much interesting because you heard so much about this word. That is transform. इसके बारे में तुम लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है. But today we are going to see what is the logic, what is the scientific fact behind the transformer. So before starting this, I want to tell you, there are two types of current. As I told you, one is AC, another is DC. AC means alternating current, DC means direct current. So the first important fact that transformer is working on the AC current. Transformer किस पे वर्क करता है स्टूडेंट? AC current. Okay, the most important fact. ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पे वर्क करता है, डीसी करंट पे वो वर्क नहीं कर सकता. डीसी करंट पे अगर वर्क करेगा तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर मे गॉट बर्न और इट विल बी डैमेज्ड. ओके, बिकॉज हाई मच यू नो. हाँ, अब चलो देखते हैं इसका ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है. एक्चुअली ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस. Transformer is a device which is used to converting the low alternating voltage at high current to high alternating voltage at low current. ठीक है, सबसे ये क्या होता है? It is a device. You लिख दीजिए, बहुत important है. It is a device which is used to work at low alternating voltage at high current to high alternating voltage low current. ये लिखना बहुत जरूरी है. यही है तुम्हारा बेस. Okay, students, so please see this what I written. See, ठीक है, समझ में आ गया? देख लिया होगा. मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में. ठीक है, जब लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है तो करंट कैसा होता है? दिस विल बी हाई, द करंट विल बी हाई. और जब हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में करंट कन्वर्ट करते हैं तो करंट क्या हो जाता है? इट विल बी गेटिंग लो बिकॉज योर अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बी गेटिंग हाई. समझ में आई बात? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो कैसे वर्क करता है? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज at high current is converting into the high alternating voltage at low current. Clear, student? So for deriving this I am going to make the diagram. Diagram is कैसे होगा? See, this is the laminated core. This is the laminated core. अब इसे हम laminated core सिर्फ नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? laminated soft iron. ओके स्टूडेंट, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन. ठीक है, अब यहाँ पर एक तरफ हम क्या कर देंगे? वाइंडिंग करेंगे प्राइमरी कॉइल ES और सॉरी EP और ये क्या हो जाएगा? ES. यहाँ पर करंट फ्लो होगा IS, यहाँ पर करंट फ्लो होगा IP. बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, हमने क्या कर दिया? ES IP. ठीक है, समझ में आ रही है बात? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, ये तुम्हारा करंट जो फ्लो हो रहा है IS से IP में जाएगा. दिख रहा है? IS से IP में जाएगा. ये तुम्हारा कैसा कॉइल है स्टूडेंट? दिस इज योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल. और ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर हमने क्या किया है? वी विल टेक द लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ओके, and we started winding over it. The base is always soft iron core and we started copper winding over the laminated soft iron core. One side there will be a primary coil, another side there will be a secondary coil. EP means
Induced EMF produced at the primary coil and induced EMF. Oh, this is sorry, this will be P. Then you will be the secondary. हम जब तो क्लास में होते तो मुझे ये रिमाइंड कराते ना, here there will be a P and here there will be a S because this is the primary coil. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर induced EMF प्राइमरी coil में भी प्रोड्यूस होगा, induced EMF सेकेंडरी coil में भी प्रोड्यूस होगा. बात समझ में आ रही है? So this is your transformer. अब ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? तो स्टूडेंट, the principle behind the transformer is mutual induction. What is the principle? That will be the mutual induction. Mutual induction में हमने क्या पढ़ा था? When there will be a mutual induction में हमने देखा था दो कॉइल थे, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी. When there will be a current passing over the primary coil, definitely there will be a change in magnetic field and the induced EMF is going to produce, and the induced EMF is going to produce over the secondary coil. When there will be a current, when there will be a alternating current passing over the primary coil and there will be a change in magnetic field, so because of that there will be a induced EMF is producing over the secondary coil. So यही principle पे हमने ट्रांसफार्मर को बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स. So and the most important here, what is producing after this, you will see the eddy current is also producing. What is producing? Eddy current. Okay, so yeah, you know when induced EMF is produced and the flux is changes, so there will be a eddy current. So to minimize this eddy current, we will take the laminated soft iron core. Soft iron core जितना होगा वहां पर क्या होगा, eddy current उतना कम होता जाएगा. So this is the principle. This is your transformer. This is the principle behind it is working. Now there are two type of transformer. One is step up transformer, another is step down transformer. One is a step up transformer, another is step down transformer. Step up transformer means NP, NS is greater than NP. क्या हो जाएगा? IP is greater than IS. IP is greater than IS. ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो हमने नंबरिंग की है, जो वाइंडिंग की है, वो स्टेप अप के केस में क्या हो जाएगी? सेकेंडरी में ज्यादा होगी. इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ वाइंडिंग इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वाइंडिंग ओवर द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल. ठीक है, इसी के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में, यहाँ पर हमने जो वाइंडिंग की है कॉपर वाइंडिंग, वो कॉपर वाइंडिंग यहाँ प्राइमरी में पी से प्राइमरी है. ठीक है, यहाँ पर थिक कॉपर वायर होगा, थिक कॉपर वायर. बात समझ में आ रही है? थिक कॉपर वायर होगा किसमें? प्राइमरी में. और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? थिक कॉपर वायर हो जाएगा, थिक वायर में से. बात समझ में आ रही है? स्टेप अप में तुमको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे? इन द वाइंडिंग ओवर द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल एंड the winding in the primary coil is with the thick wire and the winding with the in the secondary coil is with the thin wire, so that in the step up transformer easily conversion of high current, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा? ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाई करंट इनटू अ लो करंट. इजीली हम क्या कर सकते हैं? हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? तुम्हारा लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और तुम्हारा हाई करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? नाउ अबाउट द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
एंड अगेन प्राइमरी कॉइल में कैसा होगा, थिन वायर होगा, थिन वायर होगा, और सेकेंडरी में कैसा होगा, थिक वायर होगा. It means the working is just opposite to the step up transformer. Here we are converting high alternating voltage into a low alternating voltage and low current into a high current. हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, और लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए. बात समझ में आ रही है. अब इसके बाद थ्योरी. ट्रांसफार्मर आएगा तो तुमको इतना लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतना सारा कुछ ब्लैक बोर्ड पर कॉपी कर रही हूँ. सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस पे वर्क करता है, मैंने इसी करंट लिखा है. इसके बाद डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके बाद प्रिंसिपल समझाना पड़ेगा, फिर स्टेप अप लिखना पड़ेगा, क्या होता है स्टेप डाउन, मैंने शॉर्ट में लिखा है. एवरीथिंग इज रिटन इन वेरी एनलार्ज अमाउंट इन द बुक्स, सो रेफर द रेफरेंस बुक. फिर थ्योरी, आखिर ये वर्क कैसे किया. थ्योरी में क्या कर रहे हैं हम, when we will take the laminated soft iron core and we will pass the alternating current at low voltage, means we will pass the high current at low voltage. So in the primary coil, so what is going to convert here magnetic field is produced. So what is producing, magnetic field is produced. So because of change in magnetic field in the primary coil, you will experience the production of induced EMF in the secondary coil as well as the eddy current. Okay, so क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एडी करंट. बात समझ में आ रही है. ये तुम्हारा हो जाएगा. अब कितना, इसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है. फ्लक्स is it's like whatsoever flux is produced, that is totally dependent on number of its turning. ठीक है. अब मैं डिराइव कर रही हूँ, ये सारा कुछ तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज कॉपी कर लो. स्टूडेंट प्लीज सी एंड कॉपी इट. कर लिए, चलो यहाँ से डेरिवेशन. ठीक है, डेरिवेशन में तुम डेरिवेशन में आप थ्योरी से ही क्रिएट कर रहे हैं. थ्योरी से कैसे क्रिएट कर रहे हैं, थ्योरी में क्या बोला है, नंबर of flux produces is totally depend on how much number of turning is there. फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, कितना उसमें नंबर ऑफ टर्निंग हुई है. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना उसमें टर्निंग हुई है. तो फ्लक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, phi s upon phi p is equals to ns upon n. मैं ऐसा लिख सकती हूँ. ठीक है. अब इस phi s को क्या कर देंगे, ये phi s ns upon np, अब ये phi p हो जाएगा. We are going to differentiate both the side. तुम लिखोगे पर मैं नहीं लिख रही हूँ. डिफरेंशिएट करोगे तो d phi s by dt is equals to, पता है ये कुछ डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, d phi p by dt. समझ में आ रहा है. d phi s, you know from the Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction क्या बोलता था, E is equals to माइनस d phi by dt. ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर s जोड़ दूंगी तो ये s हो जाएगा, अगर मैं इसमें p जोड़ दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, d phi p by dt. अब लिख देते हैं इसकी वैल्यू, E s is equals to ns by np is equals to p. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. मैंने यहाँ से भी लाइन बना दी ES. अभी सबको समझ में आ गया है. ठीक है. मीन्स ES IS is equals to EPI. ओह सॉरी, मैंने यही बताया. NS NP, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. दिस इज द transformation ratio. Ns upon Np is the transformation ratio. Means अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, Es upon Ep. मैं इसको लिख रही हूँ.
ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IX। ये मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की थी, फिर मैंने रब कर दिया था कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं जब डिराइव करूंगी तो समझाऊंगी। मींस इंड्यूस्ड EMF दिख रहा है, इंड्यूस्ड ये रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन है इंड्यूस्ड EMF का करंट से। बात समझ में आ रही है? इंड्यूस्ड EMF मींस वोल्टेज से। मैंने साफ यहाँ पर भी लिखा है, जब वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा है, जब करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम है। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी बुक तो ऑलरेडी ये गिवन है, या ये तो कितना हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नीड ऑफ लैमिनेटेड कोड। दो लाइन में समझा देंगे। व्हाई वी आर नीडिंग दिस लैमिनेटेड कोड? डेफिनेटली फॉर रिड्यूसिंग द एडी करंट, फॉर रिड्यूसिंग द एडी करंट एंड फॉर रिमूविंग द लॉसेस। ओके, फॉर रिमूविंग द लॉसेस। यहाँ पर बहुत तरीके के लॉसेस भी होते हैं। मैंने हाई स्ट्रेसेस पढ़ाया था, बट दिस इज नॉट इन द सिलेबस, सो आई रिमूव्ड इट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज दिस लैमिनेटेड कोड। तो कैसे लॉसेस होंगे? कॉपर लॉस होगा, फ्लक्स लॉस होगा। डेफिनेटली होल ऑफ द फ्लक्स इज नॉट you will get in the output, ठीक है। so there may be a flux loss, there may be a copper loss। हमने कॉपर बाइंडिंग की है तो कॉपर लॉस भी होगा, हमिंग लॉस भी होगा। so there are 2-3 type of losses। for removing this we are using this laminated soft iron core। okay students, so today we completed, I think maybe I left 2-3 points, so that is given in the book। Please go through it and you will get the full information regarding this transformation। okay, almost I covered all the topics from the transformer, so please read it and definitely this will come in your exam। और तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल के लिए तुम्हारे लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर यहाँ से न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, फ्लक्स को मैंने एक बार नंबर ऑफ टर्न से किया, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैंने एक बार नंबर ऑफ टर्न से किया। इससे भी हो सकता है कि भाई करंट को भी मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ से कर दिया, तो तुमको रिलेशन समझ में आ गया। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज रीड इट, रिवाइज इट एंड डू द न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू।